Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, and I welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to start new unit number 5, Network, Transport and Application Layer, and we are going to cover topic number 5.1, Network Devices. You will understand the concept of router, switch and gateway. So we will cover these three network devices. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list various network devices and describe router, switch and gateway with suitable diagram. Course outcome that is going to map by this unit is CO5, that is configure the network component and assign IP address. And program outcomes, those are going to satisfy by these videos are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic knowledge of LAN, WAN, data communication system and various protocols. Now, list of network devices. So, there are total 6 network devices we are going to use frequently whenever we are dealing with data communication system. So, network hub, network switch, gateway, network router, bridge and repeater. These are most commonly used network devices. Now we can see how these devices look like. So this is the hardware, these are the hardware devices and we are going to use these hardware devices to connect to different networks. Hardware devices that are used to connect computers, printers, fax machines and other electronic devices to a network are called network devices. तो हम नेटवर्क डिवाइसेस किसे बोलेंगे? ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस जो हमें किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, वेरियस रिसोर्सेस लाइक प्रिंटर, फैक्स मशीन और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं नेटवर्क में, उनसे अगर हमको कनेक्ट होना है तो हम जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करेंगे उन डिवाइसेस को हम बोलेंगे नेटवर्क डिवाइसेस. सो इन शॉर्ट जो भी डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है उन डिवाइसेस को हम बोलेंगे नेटवर्क डिवाइसेस. These devices transfer data in a fast, secure and correct way over same or different network. तो ये सब डिवाइसेस हम यूज करेंगे, ये हमें फास्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाएंगे, देन सिक्योर कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाएंगे एंड करेक्ट वे में हमारा डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डिलीवर करने के लिए हमको हेल्प करेंगे. Then we will see first networking device, that is router. So if we are going to see the internal structure of router, then it will look like this. So this is how we can see the router. A router is a network layer hardware device that transmits data from one LAN to another if both networks support the same set of protocols. So एक LAN से दूसरे लैन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमको राउटर काम में आएगा. सो हम राउटर को बीच में कॉन्फ़िगर करेंगे, दोनों नेटवर्क के बीच में हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे एंड ये सपोर्ट कब करेगा नेटवर्क कि जब दोनों साइड में दोनों लैन पे सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स अगर वर्क कर रहे हैं तो ही हम राउटर का यूज कर सकते हैं. सो अ राउटर इज टिपिकली कनेक्टेड टू एटलीस्ट 2 लैन्स. कम से कम 2 लैन होना चाहिए राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए. एंड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए. इट रिसीव्स इट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स विच आर डेटा फ्रेम्स विद देयर डेस्टिनेशन एड्रेस एडेड. सो राउटर पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को रिसीव करेगा और फ्रेम्स के फॉर्मेट में उसको सेंड करेगा. ओके, सो राउटर में जब भी हम डेटा रिसीव करेंगे सो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, देन वो उस पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें ऐड करेगा उसके हेडर में और उसके फ्रेम फॉर्मेट में एंड उसको डेस्टिनेशन तक डिलीवर करेगा. Router also strengthens the signals before transmitting them. That is why it is also called repeater.
सो रिपीटर का काम है कि उस पर्टिकुलर सिग्नल को वीक बनाने से रोकना, मीन्स पर्टिकुलर सिग्नल अगर आफ्टर सम टाइम वीक बनता है तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, उसके जो है सिग्नल्स जो है वो रीजनरेट करने का काम रिपीटर करता है। तो सेम काम राउटर भी करता है, ये सिग्नल को स्ट्रेंथ बनाता है बिफोर सेंडिंग देम। ओके, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस तक अगर हम सेंड करते गए सिग्नल्स तो सिग्नल्स में बिकम वीक और हमारा डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए राउटर वही वर्क करता है कि सिग्नल को वो स्ट्रेंथ बनाता है बिफोर ट्रांसमिटिंग देम। तो सेम काम रिपीटर का है, इसलिए हम राउटर को रिपीटर भी बोल सकते हैं। A router reads its routing table to decide the best possible route the packet can take to reach destination quickly and accurately। तो राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है, तो राउटिंग टेबल में जो भी एंट्रीज हैं उसको देखते हुए जो भी पॉसिबल ऑप्टिमम जो भी पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको हमारा राउटिंग टेबल फॉलो करता है टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग टेबल, स्टैटिक राउटिंग टेबल एंड डायनामिक राउटिंग टेबल। तो स्टैटिक राउटिंग टेबल में हम जो एंट्रीज है पाथ की वो मैन्युअली करेंगे। ओके, लेकिन मैन्युअली कब पॉसिबल है? अगर हमारे पास नेटवर्क में कम राउटर से, हमारे पास स्मॉल राउटर है और कम से कम उसमें कंप्यूटर से, एट दैट टाइम स्टैटिक राउटर जो है हमको काम में आएगा। लेकिन डायनेमिक राउटर जब यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड है और हमारा नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है और हमारे पास नेटवर्क राउटर्स की जो नंबर है, काउंट है, वो भी बड़ा है। एट दैट टाइम मैनुअल एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उस राउटर में डायनामिकली एंट्री करेंगे। ओके, एंड हम चेक करते जाएंगे उस राउटिंग टेबल में कौन सा रूट फ्री है, तो उस हिसाब से हम हमारा जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो असाइन करेंगे फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन स्विच, तो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लैन में कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। इट कनेक्ट्स अदर डिवाइसेस टू इथरनेट नेटवर्क्स थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो नॉर्मली ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है अगर हम स्विच का यूज करेंगे तो। और स्विच पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करता है पैकेट को रिसीव करने के लिए, स्टोर एंड फॉरवर्ड करने के लिए। ओके, हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है कि स्विचिंग टेक्निक्स, हम स्विच डिवाइस यूज करते हैं तो स्विच में एक फंक्शनलिटी होती है, फैसिलिटी होती है कि वो डेटा को रिसीव करें, थोड़े टाइम अपने पास अपने मेमोरी में स्टोर करके रखे एंड एज पर द नीड उस डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करें। ओके, तो स्विच में एक लिस्ट होती है जिसमें नेटवर्क एड्रेसेस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं हमारे नेटवर्क में, उस सबके नेटवर्क एड्रेसेस डिवाइसेस के स्टोर होते हैं। तो ऐसी एक लिस्ट मेंटेन होती है स्विच के पास। ऑन रिसीविंग द पैकेट इट चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ट्रांसमिट इट टू द करेक्ट पोर्ट। जैसे ही स्विच के पास कोई पैकेट आता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है एंड पर्टिकुलर पोर्ट को डिलीवर करता है। ओके, एंड बिफोर फॉरवर्डिंग द पैकेट्स आर चेक फॉर कोलिजन एंड अदर नेटवर्क एरर्स। तो इसमें एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन की फैसिलिटी होती है और कोलिजन के लिए भी चेक होता है। सो डेटा फुल डुप्लेक्स मोड में हमेशा ट्रांसफर होता है एंड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो हाई होता है स्विचेस में। ओके, सो अदर डिवाइसेस से हम कंपेयर करेंगे जस्ट लाइक हब, तो उससे ज्यादा ही स्पीड ये हमको देगा। देन दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेटवर्क स्पीड इवन ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक। In fact, higher data speeds are achieved on network through use of multiple switches। तो हाई स्पीड से हम नेटवर्क में डेटा सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्विचेस। देन नेक्स्ट डिवाइस इज गेटवे। अगर हम स्विच का डायग्राम देखते हैं तो देखिए इट इज अ मल्टी पोर्ट स्विच। तो जितने भी पोर्ट होंगे यहाँ पे तो उतने नंबर ऑफ पीसीज हम इस स्विच से अपने लैन में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जिस भी पोर्ट से और जिस भी पीसी से यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे एक तो हम पोर्ट नंबर या वो पीसी नंबर जो यहाँ पे लिख के रखेंगे ताकि अगर कुछ एरर डिटेक्ट हुआ या कुछ फॉल्ट हमको डायग्नोज करना है सो इजीली हम ये नंबर को देख के पर्टिकुलर पोर्ट का जो फॉल्ट है वो डायग्नोज करेंगे। ओके, तो जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ यहाँ पे जो डिवाइसेस है हम कनेक्ट कर सकते हैं। The next is gateway. Gateway is a network device used to connect two or more dissimilar network।
अभी तक हमने देखा है स्विच और राउटर जो कि सेम नेटवर्क में काम करते थे, ओके, सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे, तभी वो हम उसका यूज कर पाते थे। लेकिन गेटवे एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है कि जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अगर है, दोनों नेटवर्क अगर डिसिमिलर है और दोनों साइड में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो भी हमको गेटवे डिवाइस का यूज हम कर सकते हैं। So networks that use different protocols are dissimilar network. Dissimilar network किसको हम बोलेंगे कि दोनों साइड में दोनों भी नेटवर्क अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, उसको हम डिसिमिलर नेटवर्क बोलेंगे। सो गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है और वी कैन से नेटवर्क डिवाइस, ताकि वो जो डिफरेंट नेटवर्क्स है दोनों, उनको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। गेटवे यूजुअली इज अ कंप्यूटर विथ मल्टीपल एनआईसीज कनेक्टेड टू डिफरेंट नेटवर्क। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स एनआईसीज रहेंगे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। अ गेटवे कैन आल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड कंप्लीटली यूजिंग सॉफ्टवेयर। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, और हम कंप्लीटली सॉफ्टवेयर का यूज भी कर सकते हैं गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए। एज नेटवर्क कनेक्ट टू अ डिफरेंट नेटवर्क थ्रू गेटवेज, these gateways are usually host or end points of the network. So एक गेटवे हमारा डिवाइस है और दूसरे गेटवेज कौन से हो सकते हैं? एक तो होस्ट या एंड पॉइंट्स, मींस एंड सिस्टम जो है नेटवर्क के, वो हो सकते हैं। तो इस तरह से हम नेटवर्क में गेटवे का यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। गेटवे यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। सो जैसे स्विच पैकेट स्विचिंग का यूज करता था, सेम गेटवे भी पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करता है डेटा डिलीवर करने के लिए। In this way, it is similar to a router. The only difference being router can transmit data only over network that use same protocols. So router और ये सेम ही है, बट राउटर सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, दोनों भी साइड में सेम प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, और सिमिलर नेटवर्क्स अगर है तो ही हम राउटर का यूज कर सकते हैं, बट गेट में हम डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ गेटवे एंड यहाँ पे देखिए ये एक लैन है या एक नेटवर्क है, डिसिमिलर नेटवर्क है ये, और ये दूसरा एक डिसिमिलर नेटवर्क है, मीन्स दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए सपोज हमने ये गेटवे का यूज किया है। सो दिस इज व्हाट अबाउट गेटवे। सो लेट अस summarize today's lecture. Today we have studied what are different network devices. So total there are 6 network devices, and we have seen diagram and working for router, switch and gateway. Thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning.